Hello everyone, welcome again to the Law of Torts class. Today's topic is types of defamation. Yesterday we already have discussed about the definition of torts, essentials of torts and types of torts in short. In definition we have discussed that there are eminent jurists who have defined defamation, and then we learned that there are some essential elements to constitute defamation in the court. So now we will detailedly discuss the types of defamation. There are two types of defamation, that is slander and libel. What is slander? Slander occurs when a person's character has been defamed verbally. कोई भी पर्सन अगर दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में कोई भी ऐसा सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट वर्बली बताते हैं, दैट मीन्स इट शुड बी इन अ टेम्पोररी फॉर्म. इट मे बी एनी वर्ड, एनी जेस्चर, दैट मीन्स बॉडी लैंग्वेज से भी कोई किसी का स्लैंडर कर सकते हैं. दैट मीन्स किसी का रेपुटेशन को हार्म कर सकते हैं. कोई भी साउंड लाइक सीटी मारना, बॉडी जेस्चर लाइक आँख मारना, या फिर मुंह कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस इस तरीके से बनाना, या फिर ऐसा कोई भी बॉडी लैंग्वेज जिसके वजह से सामने वाले का रेपुटेशन डाउन होता है सोसाइटी के सामने, इस तरीके से कोई भी हरकत को स्लैंडर कह सकते हैं हम. स्लैंडर इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू प्रूव एज अ एक्शन इज़ नॉट रिकॉर्डेड एनी वे. स्लैंडर को प्रूव करना डिफ़िकल्ट है बिकॉज ये टेम्प्रेरी फॉर्म में होता है एंड ये रिकॉर्डेड वर्जन में नहीं होता है. दैट्स वाई स्लैंडर को प्रूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज कम्पेयर टू द लाइबल, because libel is in a permanent form. You can produce the documents also. And then what is libel? Libel occurs when a person's character has been defamed in a written form. So libel तब होता है जब एक पर्सन का डिफामेशन हम लोग परमानेंट फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म में करते हैं. ज़रूरी नहीं है रिटेन फॉर्म का मतलब है कि सिर्फ प्रिंट मीडिया दैट इज़ न्यूज़पेपर में ही हो, या फिर क्योंकि हमने बताया कि पब्लिकेशन मीन्स दैट डजंट मीन कि आप न्यूज़पेपर में, इट मे बी एनी सोशल ब्लॉग, इट मे बी एनी इंटरनेट सोशल मीडिया स्टेटमेंट पोस्ट, या फिर कोई भी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स लाइक वीडियो, इट मे बी एनी सॉन्ग. आपने कोई भी मान लीजिए किसी के बारे में कोई डिफामेटरी लिरिक्स बना के कोई सॉन्ग बनाया, दैट मे ऑल्सो बी अ फॉर्म ऑफ लाइबल. इट मे बी एनी पोएट्री which anything which is in recording, which is in public in written form. It libel also includes the sculptures also. It कोई भी अगर आपने मूर्ति बनाया इस तरीके से जो डिफामेटरी हो, या फिर आपने कोई भी एनिमेशन बनाया, कार्टून बना लिया, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी चीज़ जो परमानेंट फॉर्म में हो एंड ऑडियो विजुअल हो, दैट इज़ कॉल्ड libel. Over the past several years, there has been a significant increase in libel cases as a result of internet. अब क्या है कि पहले इतना ज़्यादा इंटरनेट फैसिलिटी नहीं था लोगों के पास, so it was little difficult to publish any defamatory statement. But nowadays it is very easy. You can spread मतलब सिली टू सिली चीज़ें भी हम लोग 2-3 मिनट के अंदर मिलियंस ऑफ लोगों के सामने लेके आ सकते हैं. बिकॉज देयर आर यूट्यूब, देयर आर फेसबुक, देयर आर सो मैनी सोशल प्लेटफॉर्म्स आर देयर. यू कैन यूज़ इंस्टा, ट्विटर, you can use any social media to spread over any news or any statement to the mass of public. So अब क्या होता है कि कुछ सालों से लाइबल के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. So now we will discuss some points to distinguish between slander and libel, because sometimes it happens that there is a question appears in the question paper, what are the differentiation between slander or libel, or distinguish between slander or libel. कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता है, but you have to lengthify your answer, because when you write answer of 20 marks question or any 10 marks question, then you have to lengthify your answer. So you should have some details, you should have some detailed knowledge about these things. So I am going to discuss what is slander and libel. You have already known.
But what are some differentiation points? First one is, it is a publication of a false and defamatory statement tending to injure the reputation of another person without any lawful justification of excuse. We have defined this, we have read this definition of defamation in the last class also, but here we see that कि libel क्या होता है? It is a publication in a written form. ये एक रिटन फॉर्म में पब्लिकेशन होता है. एंड स्लैंडर क्या होता है? इट इज़ अ पब्लिकेशन बाय स्पोकन वर्ड्स या जेस्चर से. ओके, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर इन दिस वीडियो ऑल्सो. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, libel is written defamation addressed to eye as well as ear, and slander is spoken addressed to ear only. तो लाइबल क्या होता है कि क्योंकि ये एक रिटन फॉर्म में है, सो वी कैन सी ऑल्सो, हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं अगर रिकॉर्डिंग में है तो, वॉइस रिकॉर्डिंग में अगर है तो. एंड स्लैंडर इज़ ओनली एड्रेस टू द ईयर. बोलते हैं क्योंकि वो वर्बल है, सो इट इज़ ओनली एड्रेस टू द ईयर ओनली, कान में सुनने के लिए. बट देयर इज़ अ एक्सेप्शन ऑल्सो. अगर मान लीजिए कि जो डिफामेटर है, हु इज़ कमिटिंग द डिफामेशन, अगर वो डेफ एंड डम है, अगर वो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है या फिर से बोल नहीं सकता है, देन ऑब्वियसली ही विल यूज़ सम जेस्चर, ही विल यूज़ सम साइन लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज. सो देन it is a, you know, it is an exception. It is an exception that it is addressed to the eye also. Third point is, libel is in the some permanent form, that is written or printed. Slander is in a transient form, spoken or gesture. ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया कि थर्ड पॉइंट, that libel should be in a written form or in a printed form. That is, if it is any animation or cartoon or any sculpture, then it will be obviously printed, or it will be in any other form that is permanent. But slander is transient, that is in a temporary form. Next, libel, the fourth differentiation is, libel is both civil and criminal offense, but slander is only civil wrong. मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि कुछ टॉर्टर्स एक्ट है जो क्रिमिनल में भी आता है, क्रिमिनल ऑफेंस भी है, एंड दे आर ऑल्सो सिविल. Depends on the damage, depends on the intention of the person, depends how it affects, it is affecting any individual or to the public. ऐसे चीज़ों पे डिपेंड करके हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे टॉर्टर्स एक्ट है विच इज़ क्रिमिनल ऑफेंस ऑल्सो. सो लाइबल एक ऐसा टॉर्टर्स एक्ट है जो कि हम क्रिमिनल ऑफेंस में भी स्टडी करते हैं. एंड स्लैंडर इज़ ओनली सिविल रॉन्ग. इन इंग्लिश लॉ स्लैंडर इज़ नो ऑफेंस. इंग्लिश लॉ में स्लैंडर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट नहीं है, बट इन इंडिया इट इज़ both are wrongful, act. Both libel and slander is a wrongful act. Fifth point, slander may be uttered in the heat of moment and under sudden provocation, but libel is not so. Slander क्या होता है कि हम गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं, बट वी डोंट मीन इट एक्चुअली. गुस्से में हीट ऑफ द मोमेंट या अंडर सम प्रोवोकेशन हम कुछ भी बोल देते हैं कई बार, लेकिन वो क्योंकि इन अ नॉन परमानेंट फॉर्म होता है तो हम लोग उसको वापस कर सकते हैं. वी कैन एटलीस्ट हम दोबारा से इस चीज़ को लोगों के सामने बहुत ज़्यादा नहीं फैल जाता है, क्योंकि इट इज़ इन टेम्पररी फॉर्म. तो अगर हम लोग अपने स्टेटमेंट को फिर बाद में चेंज करते हैं, दैट विल ऑल्सो ओके. बट लाइबल का क्या होता है, क्योंकि वो रिटन फॉर्म में है और वो बहुत जल्दी स्प्रेड भी हो जाता है. तो एंड सबसे बड़ी बात है कि लाइबल क्योंकि ये रिटन है, तो लिखने में एटलीस्ट हमारे ब्रेन को कुछ मोमेंट टाइम मिल जाता है कि एटलीस्ट वी कैन थिंक ट्वाइस. सो इट इज़, हम लोग कह नहीं सकते कि ये हीट ऑफ मोमेंट में है या प्रोवोकेशन में है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़, अ लाइबल कंड्यूसेस टू द ब्रीच ऑफ पीस बट अ स्लैंडर डज नॉट. लाइबल से ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, बट स्लैंडर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है. लास्ट
differentiation which I will mention here, it is libel is actionable per se, that is it itself is a tortoise act, it does not need any proof. इसके लिए प्रूव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. बट स्लैंडर, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, दैट स्लैंडर इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रूव एक्चुअली, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. In the following cases we will see that slander is a actionable per se. It can be proved with, it can be actionable without any proof. What are those exceptions? Imputation on criminal offence to the plaintiff. अगर आप plaintiff के अगेंस्ट में कोई भी criminal offence चार्ज करते हो कि उन्होंने ये काम किया है, he is a criminal, ऐसे केसेस में slander is actionable per se. Secondly, imputation of a contagious or infectious disease to the plaintiff. अगर आप किसी भी पर्सन के अगेंस्ट ये कहते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन में कुछ ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज़ है या फिर ऐसा कोई भी कंटेजियस डिजीज़ है विच इज़ वेरी मच कम्युनिकेबल एंड विच इज़ वेरी मच ड्रेडफुल, इसके वजह से लोग उनको अवॉइड करने लग जाते हैं, उनके आसपास भी नहीं आते हैं, उनको नेग्लेक्ट करते हैं और उनसे दूर भागते हैं. इस तरीके से अगर चीज़ें होते हैं किसी के साथ एंड इट इज़ प्रूव दैट यू हैव स्प्रेडेड सम false statement, then it is actionable per se. Number C, imputation that the person is incompetent, dishonest or unfit in regards to the office, profession, trade, business carried by him. अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में उनके कॉम्पिटेंसी, उनके जॉब की कॉम्पिटेंसी या फिर उनके कोई भी कैरियर से रिलेटेड या फिर आपने किसी भी तरीके से अगर कोई भी पर्सन को एज डिसऑनेस्ट मैन अगर प्रूव कर या फिर that which proves that he is a dishonest person एंड इसकी वजह से उनके जॉब प्रोफाइल में या उनके कैरियर में, उनके बिजनेस में या फिर कोई भी मॉनेटरी लॉस उनको हो जाता है जो इरिपेयरेबल है. इस तरीके से अगर कुछ भी करते हैं एंड विच इज़ later on prove that you have stated some wrongful statement, wrong statement, false statement, then you will be liable by slander and it is actionable per se. Thank you for your listening. That's all for the day. See you tomorrow.